السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم جماعت تیسری مضمون ماحول کا مطالعہ سبق نمبر 2 آہا کتنے قسم کے ہیں یہ جانور، اس سبق کے سوال و جواب دیکھیں گے۔ الف، کیا کریں گے بھلا؟ ٹھہرے ہوئے پانی میں مچھر پیدا ہوتے ہیں۔ مچھر کی وجہ سے ملیریا، ڈینگو، چکن گنیا جیسی بیماریاں پھیلتی ہیں۔ مچھر کی افزائش روکنے کے لیے تدابیر کرنا ہے۔ اس کا جواب ہم اس طرح سے لکھیں گے۔ آپ کی تدابیر آپ کے طور پر لکھ سکتے ہو۔ ہم نے یہاں پر اس طرح سے لکھا ہوا ہے، جیسے نمبر 1، ٹھہرے ہوئے پانی کے گڑھے جہاں پائے جاتے ہیں انہیں بھر دیں گے۔ نمبر 2، ٹھہرے ہوئے پانی کی سطح پر جراثیم کش دواؤں کا چھڑکاؤ کریں گے۔ نمبر 3، اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں گے تاکہ مچھر پیدا نہ ہو۔ ب، آؤ دماغ پر زور دیں۔ نمبر 1، بھورا اڑنے والا جانور ہے، لیکن وہ کیڑا ہے یا پرندہ؟ اس کا جواب ہے بھورا کیڑا ہے، کیونکہ اس کے 6 پیر ہوتے ہیں اور 2 چھوٹے سے پر ہوتے ہیں۔ یہ جسامت میں بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ اس کا جسم پروں سے ڈھکا نہیں ہوتا، اس لیے یہ پرندہ نہیں، کیڑا ہے۔ نمبر 2، مچھلی اور گرگٹ میں کون سی یکسانیت پائی جاتی ہے؟ اس کا جواب ہے مچھلی اور گرگٹ دونوں میں فکری ستون پایا جاتا ہے، یعنی ریڑھ کی ہڈی۔ دونوں کے جسموں پر سفنے پائے جاتے ہیں۔ ان خصوصیت کی بنا پر دونوں میں یکسانیت پائی جاتی ہے۔ نمبر 3، کون سا ایسا جانور ہے جس کے جسم پر پٹے پائے جاتے ہیں؟ اس کا جواب ہے زیبرا اور شیر کے جسم پر پٹے پائے جاتے ہیں۔ نمبر 4، ریگستان میں رہنے والے لوگ اونٹ کس لیے پالتے ہیں؟ اس کا جواب ہے اونٹ کے جسم کی بناوٹ اس طرح کی ہوتی ہے جو ریگستان جیسے علاقے کے لیے نہایت مناسب ہے۔ اس کی لمبی ٹانگیں اور گدے دار تلوے ریت پر چلنے کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں۔ اونٹ ریگستان کی تپش کو برداشت کر سکتا ہے۔ وہ کافی وقت تک بغیر پانی کے رہ سکتا ہے، اسی لیے اونٹ کو ریگستان کا جہاز کہتے ہیں۔ ریگستان میں رہنے والے لوگ بار برداری کے لیے اور سواری کے لیے اس کا استعمال کرتے ہیں۔ ان کے لیے اونٹ مفید جانور ہے، اس لیے وہ اونٹ پالتے ہیں۔ نمبر 5، بھیڑیں کس لیے پالتے ہیں؟ اس کا جواب ہے بھیڑ کے جسم پر موجود بالوں سے اون حاصل ہوتا ہے۔ ان سے گوشت اور دودھ بھی حاصل کیا جاتا ہے۔ ان کی مینگنیوں سے کھاد تیار کی جاتی ہے۔ اس طرح یہ نہایت کارآمد اور مفید ثابت ہوتے ہیں، اس لیے لوگ بھیڑیں پالتے ہیں۔ نمبر 6، مرغیاں کس لیے پالی جاتی ہے؟ اس کا جواب ہے مرغیوں سے انڈے اور گوشت حاصل ہوتے ہیں، اس لیے مرغیاں پالی جاتی ہے۔ نمبر 7، تیز دوڑنے والے جانوروں کے نام لکھو۔ اس کا جواب ہے ہرن، گھوڑا، شیر، چیتا، تیندوا، یہ سب تیز دوڑنے والے جانور ہیں۔ نمبر 8، اونچی اڑان بھرنے والے پرندوں کے نام لکھو۔ اس کا جواب ہے چیل، باز، شاہین، یہ سب اونچی اڑان بھرنے والے پرندے ہیں۔ 9، کن جانوروں کے جسم پر دھبے ہوتے ہیں؟ اس کا جواب ہے چیتا، تیندوا اور زراف، ان جانوروں کے جسم پر دھبے ہوتے ہیں۔ نمبر 10، عیال یعنی گردن پر بال کون کون سے جانور کو ہوتی ہے؟ یہاں پر اس کا جواب ہے نر شیر کی گردن پر بال یعنی عیال ہوتی ہے۔ جیم، نیچے دیے ہوئے جملے مکمل کرو۔ تمام کوے خالی جگہ ہوتے ہیں۔ تمام کوے کیسے ہوتے ہیں؟ کالے، یہاں پر آئے گا کالے۔ تمام طوطے خالی جگہ ہوتے ہیں۔ تمام طوطے کیسے ہوتے ہیں؟ ہرے، یہاں پر آئے گا ہرے۔ لیکن گایوں کے رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ گائے کالی،
खाली जगह होती है। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से रंग की होती है, काली, सफ़ेद या भूरी। इस तरह से हमें यहाँ पर लिखना होगा। दाल, मालूमात हासिल करो और अपने हम जमातों को सुनाओ। यहाँ पर आपको मालूमात हासिल करनी है और अपने हम जमातों को सुनाना है और ये मालूमात आपको याद भी रखनी है। शेकरू, हरियल, गेंडा, शेर बबर में से किसी एक की तस्वीर हासिल करो। इसके बारे में मालूमात हासिल करो, इसे साफ सुथरा लिखो और अपने हम जमातों को सुनाओ। यहाँ पर आपको जो जानवरों के नाम दिए हुए हैं उनकी मालूमात हासिल करनी है, इसकी तस्वीर बनानी है और मालूमात लिखनी है। हमने यहाँ पर देखिए शेकरू की तस्वीर बताई हुई है और इसकी मालूमात भी आपको लिखकर बताई हुई है। जैसे कि शेकरू के मुतालिक यहाँ पे मालूमात दी हुई है, ये एक बड़ी जसामत की गिलहरी है जो रियासत महाराष्ट्र में पाई जाती है। ये दरख्तों पर ऊपर से छलांग मारती है, इसलिए आसानी से देखी नहीं जा सकती। दिन भर ये दरख्तों पर ही छुप कर रहती है और अलग सुबह ही देखी जाती है। ये चीते की मरगूब शिकार है। शेकरू ग़िज़ा के तौर पर फल और बीज खाती है, इसलिए ये पेड़ों पर ऊंचाई पर घोंसला बनाती है। ये महाराष्ट्र में मगरबी घाट और भीमा शंकर के इलाकों में पाई जाती है। अब नंबर 2 है हरियल। यहाँ पर हरियाल लिखा हुआ है, हरियाल भी कहते हैं और हरियल भी कहते हैं। पीले, इसकी तस्वीर भी देखिए आपको यहाँ पे बताई हुई है किस तरह से है। पीले पैरों वाला ये सब्ज रंग का कबूतर है। ये महाराष्ट्र का रियासती परिंदा है। ये आड़ू, अंजीर और गिल्लर शौक से खाता है। सुबह के वक्त अक्सर ये घरों में उड़ते हैं और फलों के बाग के फल पर हमला करते हैं। जनवरी की इब्तिदाई दिनों में इनकी मादा अंडे देती है। इन अंडों से एक माह में बच्चे बाहर आते हैं। महाराष्ट्र के अलावा ये भारत के मुख्तलिफ इलाकों में पाया जाता है। यहाँ पर आपको जितने जानवरों के नाम दिए हुए हैं उतने लिखे हुए हैं, तो आप चाहे तो सिर्फ एक ही जानवर की मालूमात लिख सकते हो और आपको अगर अपनी मालूमात में इजाफा करना है तो दी हुई तमाम मालूमात को आप लिखिए। नंबर 3 गेंडा। निहायत बड़ी जसामत का ये जानवर तकरीबन 400 से 600 किलोग्राम वजन रखता है और फितरी तौर पर मुकम्मल सब्ज़ीखोर है। गेंडे की नाक के ऊपर सींग मौजूद होती है। इसी सींग की वजह से इसका शिकार कर लिया जाता है। इसी बिना पर गेंडों की तादाद कम होती जा रही है। आसाम के घने जंगलात में जहाँ भारी बारिश होती है, झाड़ियाँ और लंबी घास पाई जाती है, अक्सर गेंडे वहीं पाए जाते हैं। आसाम के काजीरंगा मकाम पर गेंडों के तहफ़्फ़ुज़ का इंतज़ाम किया गया है। इंसान ही गेंडे का सबसे बड़ा दुश्मन है। इनके बच्चे मगरमच्छ, शेर और चीते जैसे जानवरों का शिकार बन जाते हैं। नंबर 4 शेर बबर। शेर बबर जंगल का बादशाह कहलाता है। इंसानों के जरिए आए दिन इस बादशाह का शिकार किया जाता है, इसीलिए इनकी तादाद दुनिया भर में दिन ब दिन कम होती जा रही है। एशियाई शेर बबर गुजरात के इलाके गीर में पाए जाते हैं। नर शेर बबर की गर्दन पर बाल पाए जाते हैं, इन्हें अयाल कहते हैं। मादा शेर बबर में अयाल नहीं होते। शेर बबर अक्सर अपनी मादा और बच्चों के साथ ग्रुप में रहते हैं। इनकी इस शान और शौकत की वजह से ही ये जंगल के बादशाह कहलाते हैं। नीचे दिए हुए सवालों के जवाब लिखो। नंबर 1 कौन कौन से जानवरों से हमें दूध हासिल होता है? इसका जवाब है गाय, भैंस, बकरियों और भेड़ों से हमें दूध हासिल होता है। नंबर 2 घर में चूहे क्यों नहीं होने चाहिए? इसका जवाब है चूहे अनाज के ज़ख़ीरों को बर्बाद करते हैं, घर में मौजूद चीज़ों को वो कुतरते हैं भी है, दीवारों और ज़मीनों को खोदकर बिल बनाते हैं और घर को कमज़ोर कर देते हैं, इसलिए घर में चूहे नहीं होने चाहिए। नंबर 3 मक्खियाँ कहाँ रहती है? इसका जवाब है
मक्खी भी तितली और मच्छर की तरह कीड़ा है जिसके 6 पैर होते हैं और ये हवा में उड़ती फिरती है। ऐसी जगहों पर पाई जाती है जहां उन्हें आसानी से ग़िज़ा मिल जाए। नंबर 4, किन जानवरों के जिस्म परों से ढके होते हैं? इसका जवाब है परिंदों के जिस्म परों से ढके रहते हैं, जैसे चिड़िया, कबूतर, कौवा, मुर्गी और मोर वगैरह। नंबर 5, परिंदों के कितने पैर होते हैं? इसका जवाब है परिंदों के 2 पैर होते हैं। इनके अगले 2 पैर परों में तब्दील हो जाते हैं। वाओ, नीचे दिए हुए जुमले सही है या गलत लिखो। नंबर 1, बगला सफ़ेद होता है। ये जुमला सही है। नंबर 2, तोते के जिस्म पर सपने पाए जाते हैं। ये जुमला सही है क्या? नहीं, ये जुमला गलत है। बिल्ली बार बारदारी के काम में हमारे लिए फ़ायदेमंद है। ये जुमला भी गलत है। नंबर 4, छिपकली के जिस्म पर बाल होते हैं। ये जुमला गलत है। नंबर 5, मुर्गा बहुत ऊंचा नहीं उड़ सकता है। ये जुमला सही है। आपको यहाँ पर लिखना है। जे जोड़ियाँ लगाओ। यहाँ पर आपको जोड़ियाँ लगानी है, ग्रो अलीफ और ग्रो बे में। यहाँ पर आपको अलीफ में दिया हुआ है गिरगिट, चील, चमगादड़, तितली और मछलियाँ, और बे में दिया हुआ है 6 पैर होते हैं, रेंगते हैं, पानी में रहती है, उड़ सकता है लेकिन परिंदा नहीं, आसमान में ऊंची उड़ान भर सकती है। यहाँ पर इसमें से आपको सही मुतबादिल चुनना है। जैसे कि गिरगिट के लिए सही क्या लफ्ज़ आएगा? रेंगते हैं। चील के लिए आएगा आसमान में ऊंची उड़ान भर सकती है। चमगादड़ के लिए आएगा उड़ सकती है लेकिन परिंदा नहीं। तितली के लिए आएगा सही जवाब 6 पैर होते हैं, और मछलियाँ पानी में रहती है। इस तरह से हमें सही जोड़ियाँ लगानी है और आपकी बयाज में आपको लिखना है। नीचे दिए हुए जानवर पहचानो। घर में जाले बनाने वाला कौन होता है? जी हाँ, मकड़ी। उसके बाद रंग बिरंगी क्या होती है? तितली। और सूंड वाला हाथी। तेजी से दौड़ने वाला हिरन। इस तरह से आपको यहाँ पर ये नाम लिखने हैं। तो नीचे दिए हुए जानवरों को कितने पैर होते हैं लिखिए। आपको यहाँ पर लिखना है। सांप को कितने पैर होते हैं? चील, हिरन, छिपकली और मक्खी। यहाँ पर हमें पता है कि सांप को कोई पैर नहीं होते हैं। चील को 2 पैर, हिरन को 4 पैर, छिपकली को 4 पैर और मक्खी को 6 पैर।